Good morning, class. So, class ninth, today we will start our chapter from forms of business organization. आज हम forms of business organization का chapter study करेंगे, ठीक है? You have studied about what is business, the meaning of business, trade, commerce. So, business organizations are of various types. So, this table shows you the various forms of business organization, right? ये टेबल आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस फॉर्म डिपिक्ट किया दिस मीन्स shows the various forms of business organization. See here, this is your private sector, right? So there are basically three type of business sectors. First one is private sector, second one is joint sector, and third one is public sector. Private sector, it is that sector in which all the resources are employed by the private individuals, all the risks are taken by them, all the investments are done by them. So private sector is that sector, and public sector is that sector in which all the investments are done by the government, either it is a state government or it is a central government. So all the investment are done by the government and government takes the risk and get the benefit. This is public enterprises or public sector. Private sectors are of how many types? It is of first type is sole proprietorship, second joint Hindu family, third partnership, joint stock companies or cooperative societies. It is of five types, right? Joint sector, that is the combination of both private and public sector. So joint sector are of one type, and here public sector, it is of again three types. Departmental undertaking, right? It is run through a department, a separate department, that is railways department, public and telegraph departments. Next is public corporations, and third one is government company. So in this chapter we will discuss the private sector's various forms of business organizations. So beta see here, business enterprises is an organization which is engaged in some sort of business activity or commercial activity. And every business enterprises is a separate and different unit of business, right? And business, various form of business organization from which one can choose the right one include, it is sole proprietorship, second, joint Hindu family business, partnership, cooperative society, and joint stock companies. So, in this way, we will study about these five type of business organization in. So, this is your first type of business organization, sole proprietorship. See from the picture here, one single owner is shown. This is owner of the business, and this owner, this is single ownership, and this single owner does not share the profit and losses of business with anyone. There is only one man capital. It has unlimited liability. What it means? That means if the business fails, he has to pay the debt of the business with the personal property of owner also. That means कि अगर business कहीं पे लॉस में जाता है तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी बिजनेस का मनी पे बैक करना पड़ेगा, ठीक है. लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर आप सोल ट्रेडरशिप यानी सिंगल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ आप अकेले ही बिजनेस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल भी रिक्वायर्ड नहीं है. एंड हेयर इज़ वन मैन कंट्रोल. दिस बिजनेस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है. So this is sole proprietorship, a business which is owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization, right? And features, there is formation and closure, liability is unlimited, sole risk bearer, he only takes a risk and share the profit. सारा risk भी उसी को उठाना पड़ेगा, profit भी उसी का है, and he controls the entire business. No separate entity. और बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता है. दैट मीन्स अगर बिजनेस को लॉस होगा तो पर्सन को भी होगा. देर इज़ नो सेपरेट एंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, और बिजनेस कंटिन्यू भी नहीं रहेगा अगर सोल प्रोप्राइटर आपका सिंगल ओनर सिक हो जाता है एंड
हैव सम डिजीज देन बिजनेस विल नॉट बी लॉन्गर टू बी कंटिन्यूड, कि अगर ये बीमार हो जाता है सिंगल ट्रेडर तो बिजनेस आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो भी आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है. सो दीज आर द फीचर. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस. सो दीज आर द मेरिट ऑफ सोल ट्रेडरशिप. इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर एक ही पर्सन बिजनेस कर रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग, ही टेक्स द डिसीजन वेरी क्विकली. वो जल्दी से अपने सारे डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसको किसी से कंसल्ट नहीं करना है और उसको अपने बेस पे ही सारे डिसीजन लेने हैं. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन सारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी. डायरेक्ट इंसेंटिव एंड सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट. और अगर वो खुद काम कर रहा है तो प्रॉफिट भी उसी को मिल रहा है तो वो डायरेक्टली मोटिवेट रहेगा काम करने के लिए. ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. और ऐसे बिजनेस को सेटअप करना भी बहुत ईजी है और क्लोज करना भी बहुत ईजी है. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ द लिमिटेशन. अब इसके लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है. लिमिटेड रिसोर्सेज. क्या आपके पास मनी क्या है, लिमिटेड. यू हैव लिमिटेड मनी, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. और आपके बिजनेस की लाइफ भी क्या है, लिमिटेड है. ठीक है, ऊपर मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि अगर बिजनेसमैन सिक हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बिजनेस विल नो लॉन्गर बी इन कॉन्टिन्यूटी. एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर आपको लॉस होता है बिजनेस में तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका घर बार भी बेच के आपको बिजनेस क्रेडिटर्स के पैसे देने पड़ेंगे, दूसरे लोगों के पैसे देने पड़ेंगे जिनसे आपने लिए हैं, भले ही आपके बिजनेस से उतना रिकवरी ना हो. नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी. कि अगर एक पर्सन है वही अपना पैसा लगा रहा है, वही रिस्क ले रहा है, वही वर्क कर रहा है, तो आपको पता है कि हर पर्सन तो एफिशिएंट नहीं हो सकता. दैट मीन्स लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी. इसमें मैनेजमेंट करने की एबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड. This is our second type of business organization. It is Hindu undivided family. See, this is a joint family, grandparents, parents, and the child. So, this is Hindu undivided family. This is a type of business or so in this type of business organization comes into existence as per the Hindu Inheritance Act of India कि ये Hindu Act of India के accordingly ये फॉर्म बनी है. और in this form is only found in India. ये इस प्रकार का बिजनेस जो है, इस टाइप का बिजनेस only in India, found in India, and all the members are फैमिली ओन्स द बिजनेस जॉइंटली. सभी मेंबर्स का, फैमिली के सभी मेंबर्स का बिजनेस क्या होता है, जॉइंटली होता है. और दे आर मैनेज्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली. जो फैमिली का हेड होता है वही उस बिजनेस को मैनेज करेगा. दैट इज कॉल्ड कर्ता. एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड को पेरेनर्स. So this is the type of business organization, joint Hindu family business. ये जमशेदजी टाटा की फैमिली का फोटोग्राफ दिया है. So, joint Hindu family business, the business which is carried by the male member of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. कि वो business जिसमें घर के मेल मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेल मेंबर्स बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं हम, कौन सा बिजनेस बोलते हैं हम उसको, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. और इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए. एक तो मिनिमम घर में 2 मेल मेंबर होने चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ की, कुछ आपके एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड हिंदू joint Hindu family business. Now about the feature of this business, that what are the feature of this business. So see here, this business are of two types, टू सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस. कि ये बिजनेस में दो सिस्टम होते हैं, एक होगा दया भागा और दूसरा है मिताश्रा. ठीक है, मिताक्षरा और दया भागा दो सिस्टम्स हैं. अब देखो इसमें दया भागा और मिताक्षरा. जो आपका मिताक्षरा सिस्टम, दया भागा सिस्टम है, इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स को ही बिजनेस में एज अ मेंबर ट्रीट करते हैं. ठीक है, एंड इन मिताक्षरा all members whether they are male or female, they all are treated as member of the joint Hindu family business, right. कि पश्चिम बंगाल में now about the features of this system: formation, liability, control, continuity and minor members.
सी माइनर्स आर ऑल्सो ट्रीटेड मेंबर इन दिस बिजनेस, कि वैसे हम 18 ईयर से कम वालों को मेंबर ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हम माइनर को भी मेंबर ट्रीट करते हैं. सेकेंडली, ये बिजनेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ one member, business also still continued, and the liability of कर्ता is अनलिमिटेड. ऑल द मेंबर्स आर लिमिटेड, कि बाकी सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. नाउ मेरिट्स. अब इसके फ़ायदे देखो. इफेक्टिव कंट्रोल, कि आपके पास पूरी फैमिली है बिजनेस देखने के लिए, तो कंट्रोल इफेक्टिव होगा. कॉन्टीन्यूस बिजनेस एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा जैसे जैसे आपकी आगे जैसे बिजनेस जो है वो फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंगली कंटिन्यू चलता रहेगा. एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कि इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. दैट मीन्स कि अगर आपके सभी आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ऑब्वियसली मेंबर्स आर लॉयल टू देयर बिजनेस. ठीक है, सभी के सभी मेंबर क्या होंगे? कोऑपरेटिव भी होंगे और लॉयल भी होंगे. दीज आर द मेरिट्स. ये हैं इसके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट. नाउ द लिमिटेशन यानी ड्रॉबैक्स क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज की. आफ्टर ऑल यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ वन सिंगल फैमिली, सो दैट मीन्स अवर रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड. कि हमारे रिसोर्सेज कैसे होंगे? ऑब्वियसली लिमिटेड होंगे. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, और कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है इसमें? अनलिमिटेड. ठीक है, कि अगर बिजनेस डूब जाता है तो कर्ता को वो लाइबिलिटीज़ पे करनी होती है. नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कि कर्ता जो है इसमें वो सबसे क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है. ठीक है, वो सबको डोमिनेट करता है. नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कि कर्ता की जो मैनेजरियल स्किल है वो कैसी होती है? लिमिटेड. कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कर्ता उसमें मैनेज करेगा, ये भी कंपलसरी नहीं होता है कि कर्ता में ऑल टाइप ऑफ मैनेजरियल स्किल हो. तो दैट मीन्स इट हैज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस टुडे फॉर्म्स ऑफ वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव डिस्कस अबाउट द sole proprietorship and joint Hindu family business, and tomorrow we will discuss two more forms of business organization. Thank you.